الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، قبل اس کے کہ ہم آج کے درس کی طرف آگے بڑھے، کل کے درس سے ایک سوال ہے. سوال بڑا آسان ہے، دو سوال رہیں گے انشاءاللہ، جو دونوں بھی تقسیم ہو جائیں گے. پہلا سوال، رفاع رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین ذریعہ معاش کون سا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا ہمارے لیے. کیا تھا نسخہ؟ بارک اللہ. کتنے نقطے کتنے ہیں حدیث میں؟ 3 نقطے ہیں، 2 نقطے؟ ارے 2 بولو بیٹا. بارک اللہ فی علمک. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا آدمی اپنی محنت سے کمائے اور شریعت اس کمانے کو جائز قرار دے. معلوم تھا یہ جواب؟ نہیں. لیجیے ایوب بھائی، بارک اللہ فی علمک. دوسرا سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تجارتوں میں منع کیا ہے. تقریباً 3 حدیثیں کل کچھ پڑھے ہم. اللہ کے نبی نے وہ تجارت منع کی. اس میں سے کوئی 2 بتائیں. ایوب نہیں، دوسرے ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ تجارت آپ نہیں کرنا ہے. کل ہم 3 کچھ باتیں پڑھے تھے، 3 حدیثیں پڑھے تھے. اور ایک بار ایکسچینج کرنے کے مسئلے میں، وہ نہیں، وہ آج کے درس میں ہے، وہ کل کے نہیں. آج میرے ساتھ اوپر بیٹھے تھے آپ. ہاں، نجش، بارک اللہ فی علمک. لفظ بھی یاد ہے، لیجئے. کس کس کا حصہ ہے؟ جلدی لے لینا. تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آج کے درس میں. آج یا کل ہو سکے تو انشاءاللہ آج اگر بات سمٹ گئی تو معاملہ تقریباً ختم کر لیں گے، کیونکہ اس کے بعد اور بھی مسائل ہے، احکام الہی ہے جس کو ہمیں جاننا ہے. نکاح ہے، خلا ہے، طلاق ہے، انسانی زندگی ہے، طہارت ہے، بہت سارے اسباق ہیں. معاملہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس میں سے ایک معاملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اسلام میں دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک جائز ایک ناجائز. کیا ہے؟ 2 راستے ہیں. ایک سیدھا راستہ ہے جو جائز ہے، اور وہ سیدھا راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اس سیدھے راستے چلتے چلتے درمیان میں بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتائی کہ یہ سارے راستے جو ہے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. جس طریقے سے ہمارا ارادہ عبادات میں بڑا منہمک ہوتے ہیں ہم کہ سیدھے راستے پہ رہے، ویسے ہی ہمیں چاہیے معاملات میں بھی درست رہے. یہ معاملات ایک مومن کی شان ہے. جیسے ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ تجارت جائز ہے اور اس کے خرید و فروخت میں کون کون سی چیزیں خیال رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تمہارے لیے کاروبار کرنا جائز ہے، حلال ہے، اور سود کھانا حرام ہے. یہ اصول کی بات ہے. کاروبار کرنا جائز ہے، سود کھانا منع ہے. سود کے سلسلے میں ایک آیت ہم پڑھ لیں گے. کون سی آیت؟ کتنی آیت؟ ایک آیت. آیت نمبر یاد رکھیں گے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر
200 क्या है 270 पर 9, सूरह बकरा आयत नंबर 270 पर 9। इस आयत में अल्लाह ने एक पैगाम दिया उन लोगों के लिए जो अब तक सूद ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं। और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सूद खाने वाले होंगे, उनको ये कुरान खोलना, सूरह बकरा आयत नंबर 270 पर 9, 270 पर 9 खोलना है। सीधा कुरान तर्जमे है, मोबाइल फ़ोन में है, खोल करके उन्हें वो आयत पढ़ाना है। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। क्या आयत सुनो, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। किससे डरना? अल्लाह से डरो। वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा, अब तक जो सूद लेते थे ले लिए, जो बचा हुआ है तुम उसको छोड़ दो। किसी को कर्ज़ दिए हैं और उसको बताए हैं कि 1000 रुपये कर्ज़ दिया हूँ, तुम्हें 1100 रुपये वापस करना है। 1100 में 600 रुपये असल कर्ज़ माफ़ कर दे, ले लिया है। बकिया अगर सूद भी 60 रुपया अगर है, कुरान कहता है अगर कुछ सूद बाकी है तो क्या कर देना है? उसे छोड़ देना। असल को नहीं छोड़ना है। तुम्हारा असल जितना है कर्ज़ दिए हैं वो लेकर रहना, लेकिन जो सूद मुकर्रर हुआ है उसे माफ़ कर दो। कुरान क्या कहता है मालूम? उसके बाद तुम उसे माफ़ कर दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो तो, वाकई तुम अल्लाह से डरने वाले ईमान वाले हो, तो तुम्हें चाहिए कि जो सूद लेने वाले हो उसे माफ़ कर दो, छोड़ दो। उसी आयत के बाद अल्लाह ने कहा फ़इन लम तफ़अलू, कम से कम ये सारे अहादीस नहीं समझ रहे तो एक आयत समझ करके जाओ। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए। कुरान की आयत है भैया, किसी सलफ़ का कौल नहीं है, मेरा भी कौल नहीं है। क्या है? सूरह बकरा आयत नंबर 270 पर 9। यकीन नहीं हुआ तो घर जाकर के खोल करके पढ़ना। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा नहीं करते, कुरान की आयत पढ़ने के बाद भी तुम सूद लेकर के ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए। अल्लाह अकबर। कौमें तबाह हो गई, हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। ये आने वाली नस्लें और नौजवान लोग क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल के साथ जंग करने की ताकत है। अल्लाह अकबर, नाऊज़ु बिल्लाह। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। हमें चाहिए कि इस मसले में थोड़ा बारीक बीनी से काम ले, थोड़ा बारीक बीनी से काम ले। उसी आयत में अल्लाह ने कहा व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तुम्हारा असल अभी आना बाकी है, तुम्हारा असल ले लो। ला तुज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा ना उस बेचारे पर जुल्म किया जाएगा जिसने कर्ज़ लिया है। होता क्या है मेरे भाई, कारोबार करते हैं लेकिन सामने वाला जो है पेमेंट डिले कर देता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों। तो क्या करते हैं? नाऊज़ु बिल्लाह, 3 महीने का जो वक्फ़ा वो ले लेता है, उसके बदले में और 1% या 2% बढ़ा देते हैं। ये क्या है मेरे भाई? यही तो सूद है, यही तो सूद है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी एक हदीस है, सूद के दायरे में कौन कौन आते हैं? क्या लेने और देने वाला आता है? यह डिजिटल दौर है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये नौजवान बच्चे माशाअल्लाह कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, एप्लीकेशन चला लेते हैं। घर के माँ बाप, भाई बहन, चीचा, फूफू जो भी है उनके ख़ानदान में, उन्हें फोर्स करते हैं कि मोबाइल के ज़रिए से जो सूद दिया जाता है वो सूद लेकर के दे, कर्ज़ लेकर के दे। एक हदीस सुन कर के जाओ। क्या वो बच्चे भी मुजरिम हैं? नहीं है, या सिर्फ लेने और देने वाले मुजरिम हैं? जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन कर के हदीस, सुन कर के हैं हदीस।
लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलुर रिबा मुअक्किला व कातिबा व शाहिदै व क़ालहुम सवा। अल्लाह के नबी ने कहा, सूद लेकर खाने वाला, सूद देने वाला और सूद के लिए गवाह बनने वाला, विटनेस बनने के लिए साइन करते हैं। देखो कितने अग्रीमेंट पेपर हैं सूद के, जिस पर आप अपना दस्तखत किए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं खाने वाला, देने वाला और फिर विटनेस बनने वाला, और फिर इसी तरीक़े से वकातिबा, वो जो अग्रीमेंट टाइप करता है। देखो सूद का मामला 200 रुपये दे करके अग्रीमेंट टाइप करता है, वो आदमी भी उसके ज़ुमरे में आता है। अल्लाह के नबी कहते हैं वक़ालहुम सवाउन, सब के सब बराबर गुनाहगार हैं, सब के सब बराबर गुनाहगार हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, मुफलिसी हो, गुर्बत हो, अल्लाह हमें सूद जैसे भयानक अजाब से हमारी हिफाजत फरमा दे, आमीन। सूद क्या है मेरे भाई? असल में सूद है क्या? एक छोटी हदीस सुनाता हूँ आपको, सूद का उसूल समझ में आ जाएगा। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वज़नन बिवज़निन मसलन बिमसलिन, कि सोना जो है, दोनों मामला कर रहे हैं ज़ैद और बकर, ज़ैद और बकर के दरमियान जो मामला हो रहा है, ये दोनों के मामले में मिसाल के तौर पर ये 5 ग्राम सोना इसको दे रहा है, वो 5 ग्राम सोना इसको दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जो सोना है इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर ग्राम के हिसाब से है तो कोई मसला नहीं। चांदी भी दे रहा है, इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर, कोई मसला नहीं। ज़रूरत पड़ गई है, सोना चांदी आप दे रहे हैं, आज का हमारा इकोनॉमिक मसला है, रुपये पैसे का मसला है, 1000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जो बंदा दे रहा है 50,000 कर्ज दिया है, और लेने वक्त जब 50,000 लेता है कोई मसला नहीं, ये कर्ज है, ये मामला अगर करता है, अल्लाह के नबी ने उसकी तारीफ़ बयान की है। अल्लाह के नबी ने कहा, फ़मन ज़ादा अविस्तज़ादा फ़हुवा रिबा, अगर थोड़ा भी उसमें ज़्यादा करता है, 50,000 दे करके ये कहता है 50 पर 1,000 वापस करना है, 50,000 दे करके मैं तुमने 6 महीने नहीं 2 साल टाइम देता हूँ, 50 पर 5 वापस कर डालो, ये भी सूद है। वक्त बढ़ा करके कीमत बढ़ा देना, या वक्त मुख्तसर करके कीमत घटा देना, ये सारी चीज़ें मेरे भाई सूद में आते हैं। हम मामला करते हैं, कारोबार करते हैं, बहुत सारा आज बिज़नेस का जो मसला है कर्ज़ का मसला है, कैश देकर के लो इतनी कीमत है, कर्ज़ में लोगे 3% बढ़ जाएगा आपका। तो सोचो ये मसला कैसा है, क्या शरीयत हमें इजाज़त देती है? नहीं देती है, तो हमें सोच समझ करके कारोबार करना है। ये मसला हुआ मुख्तसर सूद का। अब हमें करना क्या है भाई? इलाज क्या है इसका? मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरा भाई ज़रूरतमंद है, ज़रूरत के पेश नज़र वो भाई से कर्ज़ नहीं लेता, वो भाई के सामने हाथ नहीं फैलाता, करना क्या है? छुप छुपा करके क्रेडिट कार्ड ले लिया, कर्ज़ ले लिया है, कहीं बैंक में गया है कर्ज़ ले लिया है, या कहीं कुछ अपने घर की चीज़ें रहन में रख दिया है, सूद पर जो है कर्ज़ ले लिया है। करना क्या है मेरे भाई? एक बात गौर से समझो, हम अपने समाज और अपने ख़ानदान को अगर मजबूत करना है, एक दूसरे की मदद करना होगा। आज देखो कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, कोई भी बिना कर्ज़ के ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, हर एक की ज़िंदगी कर्ज़ में लथपथ है। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 10,000 लोग माशाल्लाह, अल्लाह ने कैसी अकल दिया है, करोड़ों का कर्ज़ रख लेते हैं, फिर भी आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें कैसी ज़िंदगी नसीब होती है, अल्लाह बचाए। तो कर्ज़ है मेरे भाई। हम अपने समाज को आगे बढ़ाना है, या तो उन्हें एम्पावर करना होगा, बिज़नेस के नए नए जो आइडिया हैं जो शरीयत में जायज़ करार दिए हैं, उन तमाम चीज़ों को हमें सीखना है, सिखाना है। या नहीं, वक्ती ज़रूरत है, हमारे पास माल है, सरमाया है, कर्ज़ देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 मामले ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने बरकत नाजिल की है। कितने मामले? 3 मामले। अल्लाह के नबी ने कहा, एक वक्त मुकर्ररा कारोबार करने वाला, नंबर 2 मुकारज़ा, आपस में कर्ज़ लेने वाला देने वाला। कर्ज़ क्या है? सामने वाले की मदद करना है,
सामने वाले का लूट करके भागना नहीं है कर्ज। मदद के वक्त में सामने अपने भाई को बुलाना और भाई आगे बढ़ करके मदद करना है, और जब उसका वक्त आए ढाल की तरह खड़े होना है। उस कर्ज जो अदा करना है वक्त मुकर्ररा से पहले अदा करना है। एक और मसला है, कर्ज के सिलसिले में शरीयत हमें क्या रहनुमाई करती है, क्या रहनुमाई करती है कि हम कर्ज ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें करना क्या है। एक आयत है सूरह बकरा की 270 पर 80 पर 2, आयत नंबर क्या है कर्ज के सिलसिले में 280 पर 2। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबूहु। तुम किसी के पास कर्ज ले रहे हो एक वक्त के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 10 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, शरीयत उसूल बताती है उसको लिख कर के रखो। क्या करना है? लिख कर के रखना है। ये शरीयत का उसूल है। और याद रखो, लिख कर रखने के बाद कोई भी आदमी सर फिरा कर के भागेगा नहीं, भागेगा। आजकल मोहल्ला छोड़कर, बेंगलोर छोड़कर भाग जाते हैं। कहाँ से? अग्रीमेंट का सिलसिला बड़ा अच्छा है हमारे यहाँ, वो सारी चीज़ें लाना है, शरीयत में है वो चीज़ें। या कम से कम तुम अग्रीमेंट नहीं बना सकते, दोस्ती है, बड़ी गहरी दोस्ती है, कम से कम एक पेपर में लिख करके रखो, कम से कम एक पेपर में लिख करके रखो। एक साहिब से मुआमला हुआ, लिखना भूल गए दोनों। ताज्जुब था कि कितना दिए हैं, 2000 दिए, 2500 दिए। लेने वाला कह रहा 2000, देने वाला कह रहा 2500। 1 साल के बाद डिस्कस हो रहा है। लिख कर रखते तो याद रहता नहीं। तो शरीयत हमें उसूल बताती है, कर्ज दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमें चाहिए उसको लिख कर रखें। एक और मसला है कर्ज़ के सिलसिले में, आदमी माशाअल्लाह अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, फिर भी कर्ज़ अदा नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मालदार अगर कर्ज़ में टाल मटोल करता है, यहिल्लु इर्ज़ुहु व उक़ूबतुहु, उसकी इज़्ज़त इफ़्फ़त को जो है वो जो है पामाल कर रहा है। मालदार है, पैसे हैं, छोटे मोटे कर्जदार होते हैं, उनको अदा कर देना। टाल मटोल करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा गोया वो अपनी इज़्ज़त आबरू को जो है पामाल कर रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से कर्ज़ दे दिए हैं, छोटे मोटे रकम है, ज़िंदगी में एक काम करो, छोटे मोटे रकम हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। बाज़ ऐसी रकम होती है ज़िंदगी में किसी की, एक आदमी की ज़िंदगी में 2000 रुपये बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन एक आदमी की ज़िंदगी में 5000 रुपये कुछ मायने नहीं रखते। अगर जिसको आप कर्ज़ दिए हैं, एक उसूल है, अगर वाकई में कर्ज़ लिया हो आदमी तंगदस्त है, दे नहीं सकता, वाकई में मुफलिस है, कभी छोटे मोटे रकम माफ़ कर दो। याद रखो, ये माफ़ करना अल्लाह इसको ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ने क्या कहा मालूम? व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा, तंगदस्त को तुम आसानी कर दोगे या कम से कम माफ़ कर दोगे या मोहलत दे दोगे, दोनों है इसमें, माफ़ करना या मोहलत देना, ये दोनों करोगे। अल्लाह ने क्या कहा मालूम? व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन सदक़ा है। क्या है? बेहतरीन सदक़ा है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान सको तो। बहुत सारे लोग ये बातों को जानते नहीं। अल्लाह ने कहा तुम जान सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हारे लिए बेहतरीन सदक़ा है ये चीज़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ज़िंदगी में हमें किसी ज़रूरतमंद को छूट देने की, मोहलत देने की और छोटे मोटे कर्ज़ माफ़ करने की अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को इतना बड़ा कर दे, हमारी ज़िंदगी में माल की बेनियाज़ी ऐसी फ़राखानी से कर दे, रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के बंदों की मदद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। ये जो हराम का और सूद का सिस्टम हमारे समाज में चल रहा है, रब्बुल आलमीन उसे बंद करने की कोशिश करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कभी इतने बुरे हालात ना लाए कि हम सूद जैसी भयानक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाए। याद रखो मेरे भाई, मामला कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बात की चीज़। मामला जब हम करते हैं तो सबसे पहले देखने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की है। तो मामला अल्लाह से डर कर के करना है। अल्लाह जो है हमारे अमाल को कबूल फरमाए, हमें नेक अमाल में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, गुनाहों से बच कर के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमाए, खैर नसीब फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए।
اللہ رب العالمین تو واحد ہے، تو بے نیاز ہے، تو ضرورت مند نہیں، یا رب تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، ہم سب کے سب فقیر ہیں یا اللہ، بس تو اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا یا رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.